Hello dear students, today we are going to take in this video lecture I am going to explain you resolution of vector क्या होता है और rectangular components of the vector क्या होते हैं. So बच्चों resolution of vector it is a process of splitting or breaking of a vector. Process of splitting or breaking of a vector into two or more parts is called the resolution of a vector. So the process of splitting or breaking of a vector into two or more parts is called the resolution of a vector. The parts so obtained are called the components of a given vector. So if A is resolved, if a vector A is resolved into two vector components A and B, then A is equal to A plus B. Then the vector A is that is equal to A plus B. So what do you mean by resolution of vector? So बच्चों, the process of splitting of a vector into its two or more parts is called the resolution of a vector. The two parts so obtained are called the components of the given vector. So for example, if A is resolved into two vector components A and B, then A can be written as A plus B. Then we write A is equal to vector is equal to A plus B. So यहाँ पर हमने लिखा. इन जनरल की अगर जनरल की बात करेंगे हम, द वेक्टर A हम लिख सकते हैं द वेक्टर A इज इक्वल टू M टाइम्स A प्लस N टाइम्स B. दिस इज द जनरल जो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर हम लिखते हैं इन जनरल में, दैट इज वेक्टर A इज इक्वल टू M टाइम्स A प्लस N टाइम्स B. So the vector A is resolved into two components, vector components A and B. Then we can write A is equal to A plus B. Vector A is equal to A plus B, sum of its components. So let us take the another subtopic, rectangular components of the vector. When a vector is resolved into two or more components and the components are mutually perpendicular to each other, then these components are called rectangular components of a vector. वो जब हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स, और ये जो कंपोनेंट्स हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन वेक्टर. लेट अस कंसिडर, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे एक वेक्टर ए विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ओ पी इन एक्स वाई प्लान. दिस इज़ एक्स वाई प्लान. इसमें हम एक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ रिप्रेजेंट बाय ए बी, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय ओ पी इन द प्लान एक्स वाई प्लान. वी ड्रा पी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स and similarly we draw Pn perpendicular on OY. Then AX is projection of A along x axis and or AX जो है AX is projection of A vector A along O axis, along x axis or OX direction, or components of A along x axis, and similarly AY is projection of vector A along y axis or along OY direction, और इसको हम बोल सकते हैं AY is the component of vector A along y axis. So बच्चों we will take, यहाँ पर हम फिगर में देखोगे ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हम OPM ऑफ फिगर में देखोगे राइट ट्रायंगल OPM, वहाँ बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स हम लिखेंगे जो OP है, OP बराबर है OM प्लस MP. यू कैन सी इन द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल OMP वहाँ डायग्राम आप देखो, तो OMP में हम लिखेंगे बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स OP बराबर है OM प्लस MP. मगर OP रिप्रेजेंट बाय वेक्टर A, OM इज रिप्रेजेंट बाय AX, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along x direction, OX direction or along x axis, and MP is represented by AY, the component of vector A along y direction or along OY direction. AX and AY, these are the rectangular components because AX and AY are perpendicular to each other. That is, we say that they are rectangular components. If I is the unit vector and J is also unit vector
in the direction of ax and ay, then we can also write that ax vector ax is equal to axi and ay is equal to ayj, where I gives the direction of ax and j vector gives the direction of ay. So यहाँ पर जैसे हमने पहले ही एक्सप्लेन किया आपको कि यहाँ पर जब a वेक्टर a बराबर है, इट इज़ रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, rectangular components ax and ay, where ax and ay are the rectangular components of vector a because they are perpendicular to each other. Also we can write ax is equal to axi unit vector and ay is equal to ayj unit vector, where I gives the direction of ax vector and j gives the direction of ay. So equation first here we can also write in this form that a is equal to axi plus ayj. So equation a can also be represented when we हम जब unit vectors उनको लगाएंगे हम, so ये बनते हैं a is equal to axi unit vector plus ayj unit vector. So here यहाँ पर जो axi and ayj they are called rectangular components of a, वो यहाँ पर भी axi और ayj जो है इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए, बिकॉज यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया ए एक्स के साथ और ए वाई के साथ जे यूनिट वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया, वायर आई और जे, आई गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स एंड जे गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वाई. सो वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए. So बच्चों, to find the magnitude and direction of A, you again refer to the figure. We will again take the triangle OPM, right angle triangle OMP, where sin theta is perpendicular by hypotenuse, that is MP by OP. You will refer to the figure. sin theta हम निकालेंगे perpendicular बटा hypotenuse MP बटा OP, that is MP is given by AY बटा OP is given by A, और यहाँ लिखेंगे हम AY is equal to A sin theta. इसको इक्वेशन थर्ड रखेंगे हम. सिमिलरली इसी फिगर में हम निकालेंगे cos theta, that is base by hypotenuse, that is represented by OM बटा OP. वो you will refer to the figure. OM बटा OP, base बटा hypotenuse, cos theta, that is OM is represented by AX and OP is represented by A, और यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे AX is equal to A cos theta. सो यहाँ पर स्क्वायरिंग हम करेंगे. अब हमारे पास AX is equal to A cos theta इक्वेशन 4, और ऑलरेडी हमारे पास AY is equal to A sin theta इक्वेशन 3. यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, इसको हम इन इक्वेशन 3 और 4 को हम करेंगे एडिंग, स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे. सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा AY स्क्वायर प्लस AX स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इनको हमने दोनों को एडिंग और स्क्वायरिंग और एडिंग किया. ये बनेगा, पहले हमने AY लिखा, बनेगा AY स्क्वायर प्लस ऐड किया AX स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग इज इक्वल टू, ये बनेगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. जब इसको स्क्वायरिंग किया और इसको ऐड करेंगे इसको A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर A स्क्वायर कॉमन निकालेंगे. ये बनेगा AY स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर A स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. और ये बनेगा AY स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर दिस इक्वल टू A स्क्वायर, और यहाँ ये लिखेंगे हम लेफ्ट साइड में, बनेगा A स्क्वायर इज इक्वल टू AY स्क्वायर प्लस AX स्क्वायर, और A निकलेगा अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 5. दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A. जब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, और AY स्क्वायर प्लस AX स्क्वायर इट इज द वन एंड द सेम थिंग. नाउ वी टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ A. तो जब हम डायरेक्शन ऑफ A निकालेंगे, वेक्टर A निकालेंगे, तो हम इक्वेशन 3 और 4 जो ऊपर दिए हुए हैं, इक्वेशन 3 और दिस इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4, इनको हम करेंगे डिवाइड, इनको डिवाइड करेंगे. तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा AY बाई AX इज इक्वल टू AY A साइन थीटा के बराबर है, AY A कॉस थीटा के बराबर है, A और A कैंसिल हो जाएगा. ये बनेगा AY बाई AX इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर है AY बटा AX, और थीटा जो जब हमने थीटा निकालना है टू फाइंड द डायरेक्शन, दैट इज टेन इनवर्स ऑफ AY बटा AX. वो जब AY पता है AX हमें पता है, तो वी कैन फाइंड द एंगल, वो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन. वो दिस इज द
दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए। सो बच्चों इसमें हमने निकाला कैसे हम डायरेक्शन निकालते हैं। सो इसमें हम कुछ एडिशन में कुछ नोट्स आपको हमेशा याद रखेंगे कि पोजीशन वेक्टर इन ए प्लेन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन प्लेन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन ए प्लेन, कैसे रिप्रेजेंट होता है। अगर ये पोजीशन वेक्टर आर है दैट इज इक्वल टू एक्स यूनिट वेक्टर आई, एक्स आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे, और मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर जब निकालेंगे वो बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद रखना है। वो पोजीशन वेक्टर इन ए प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर पी क्यू है, पी इज रिप्रेजेंटेड बाय x1i y x1 y1 and q is represented by x2 y2. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू r2 minus r1. This is displacement vector r2 minus r1 that is x2i plus y2j minus x1i plus y1j. तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये x और y अलग अलग करेंगे। ये बनेगा x2 माइनस x1 i कॉमन निकलेगा, प्लस ये बनेगा y2 माइनस y1 j कॉमन निकलेगा। तो मॉड ऑफ पी क्यू जो पी क्यू हम लिख सकते हैं, इसको हम स्क्वायर में रख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर, अंदर को हम इन दोनों को स्क्वायर में रखेंगे और साथ में ऊपर हम लिखेंगे इसको रखेंगे अंडर रूट भी रखेंगे। जब अंडर रूट रखेंगे अंदर हमने इसको स्क्वायर में रखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस स्क्वायर में रूट कैंसिल हो जाएगा, ये दोबारा वही रहेगा। सो पोजीशन वेक्टर इन प्लेन, पोजीशन वेक्टर ये हमने प्लेन में लिखा, प्लेन में देखा कि पोजीशन वेक्टर इन प्लेन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन प्लेन। तो नाउ यहाँ पर देखेंगे हम पोजीशन वेक्टर इन स्पेस कैसे होता है। जब पोजीशन वेक्टर इन स्पेस होता है दैट इज आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर इन स्पेस, ये दैट इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस आर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस आर। दिस इज गिवन बाय द पोजीशन वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर बराबर होता है इन स्पेस दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड आर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। व्हेन इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे दैट इज पोजीशन वेक्टर इन स्पेस इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन स्पेस किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो अगर ये पी क्यू रिप्रेजेंट करता है, पी एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट करता है, क्यू एक्स1 वाई1 पी x1 y1 z रिप्रेजेंट करता है, क्यू x2 y2 z रिप्रेजेंट करता है। दिस इज पोजीशन वेक्टर r1, दिस इज पोजीशन वेक्टर r2। फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर है पी क्यू, और पी क्यू वो किसके बराबर है, r2 माइनस r1। तो इनको वैल्यू दे देंगे। r2 बराबर है x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस r1 बराबर है x1i प्लस y1j प्लस z1k। सो x2 x y और z हम अलग अलग लिखेंगे तो वो फर्दर क्या बनेगा, ये बनेगा पी क्यू बराबर है x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j कॉमन निकलेगा प्लस z2 माइनस z1k। और मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे पी क्यू बराबर है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। वो ये हमने अंडर रूट में रखा और अंदर जो है उसको हमने स्क्वायर में लिखा। तो उसके साथ हम निकालेंगे व्हेन ए वेक्टर इज रिजॉल्व इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब एक वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तब a बराबर होता है ax यूनिट वेक्टर i प्लस ay यूनिट वेक्टर j प्लस az यूनिट वेक्टर k। और इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, मैग्नीट्यूड में जब हम लिखेंगे दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। सो बच्चों इसमें हमने एक्सप्लेन किया, एलोबरेट किया। इस वीडियो में हमने पढ़ा हमने कि ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, और साथ में कुछ हमने केसेस पढ़े। These are very important. You have to remember these cases. I hope you will understand in a better way. We will continue the videos. Thank you.